السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وقف ترمیمی قانون پر حکم التوا سے متعلق درخواستوں پر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ محفوظ۔ وقف اسلام کا لازمی حصہ، آرٹیکل 25 اور 26 کے ستونوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں وقف قانون پر تیسرے دن بھی سماعت، مسلم فریقین کے وکلاء کا ریجوائنڈر۔ راجیو یووا وکاسم اسکیم کو کامیاب بنانے میں بینکرز تعاون کریں۔ 2 جون کو اسکیم کی منظوریاں حوالے کرنے حکومت کا اعلان۔ بینکرز اجلاس سے بھٹے وکرمارکا کا خطاب۔ پالمور لفٹ اریگیشن کے مقدمے میں کانگریس کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ فاش۔ کالیشورم کے خلاف بھی جھوٹا پروپیگنڈا۔ ریونت ریڈی کو ناکام شخصیات کا مرض لاحق ہو گیا ہے، KTR کی چٹ چیٹ۔ اور شہر کے نواحی علاقے پیرزادی گڑا میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی، مقامی مکینوں کا اعتراض، مکانات خالی کرنے کے لیے وقت نہ دینے کا الزام۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی قانون پر حکم التوا سے متعلق درخواستوں پر سماعت مکمل ہوئی ہے۔ اعلیٰ عدالت نے فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے مرکزی حکومت نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی قانون 2025 کی مدافعت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون وقف اداروں کے سیکولر اور انتظامی پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔ یہ قانون اسلامی عقیدے کے عقائد میں مداخلت نہیں کرتا۔
चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की बेंच इस केस की समाअत कर रही है। हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों को जायदादें वक्फ करने से रोकना इस कानून का अहम इक़दाम है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि वक्फ के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, बिलखुसूस कबायली तंजीमों का यह मौक़िफ़ है कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है। जस्टिस ऑगस्टिन मसीह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील से इत्तेफाक नहीं किया जिसमें उनका कहना था कि कबायली मुसलमानों की एक अलहदा शनाख्त है। जस्टिस ऑगस्टिन मसीह का यह कहना था कि इस्लाम इस्लाम ही रहेगा, मुसलमान जहाँ भी रहे उसका मज़हब एक ही है, मुसलमानों की अलहदा शनाख्त नहीं है, उनका मज़हब एक है। इससे पहले तुषार मेहता का कहना था कि कबायली मुसलमानों की तहजीब और उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। इसी को लेकर जस्टिस ऑगस्टिन मसीह ने अपना एतराज़ दर्ज किया। सॉलिसिटर जनरल और BJP रियासतों के वकला के दलाइल के बाद मुस्लिम फरीक़ैन के वकला ने अपना रिजॉइंडर पेश किया। राजीव धवन ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के सुतूनों को हिलाया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि हिंदू औक़ाफ़ में कोई गैर हिंदू नहीं होता है, जबकि मुस्लिम वक्फ में गैर मुस्लिमों को रखा जा रहा है। कपिल सिब्बल का यह भी कहना था कि वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा है, सदका एक ज़रूरी मजहबी अमल और ये इस्लाम का उसूल है। कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के सेक्शन 3D को लेकर भी अपने दलाइल पेश किए। उनका कहना था कि JPC ने 3D को मुस्तरद किया था। JPC ने जिस शक को मुस्तरद किया था इसे बिल पर वोटिंग के दौरान शामिल कर लिया गया। कपिल सिब्बल ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से वक्फ का दर्जा छीन लिया जाएगा। 100 साल से अगर कोई कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हुकूमत कह सकती है कि ये हमारी मिल्कियत है। गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली वक्फ की हैसियत को कैसे छीना जा सकता है। तदफीन इस्लाम का लाजमी जुज़ है। हुकूमतें भी कब्रिस्तान के लिए आराजी फराहम करती हैं। अगर हुकूमत यह कहती है कि तदफीन होने वाली आराजी सरकारी है तो इसे कैसे कबूल किया जा सकता है। राजीव धवन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल का जवाब देते हुए खैरात इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि वक्फ मुस्लिम तबके के दिल के करीब का इदारा है। ये मुसलमानों की मजहबी और समाजी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वक्फ का नया कानून आर्टिकल 25 के तहत जो मराहत मिलती हैं इसे महरूम करने के लिए भी बनाया गया है। राजीव धवन ने कहा कि आर्टिकल 26 किसी भी तबके को अपनी जायदाद का इंतज़ाम करने का हक देता है। गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फ कानून की समाअत हो रही थी। इससे पहले साबिक़ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ये समाअत कर रही थी। उनके सुबुकदोश होने के बाद इस केस को मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच के सुपुर्द किया गया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने राजीव विकासम स्कीम के तहत 2 जून को मंजूरियां हवाले करने हुकूमत के मकसद में बैंकर्स कहा कि बैंकर्स ताउन करें। हैदराबाद में हुए रियासती सतह के बैंकर्स इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम बैंकर्स तालमेल के साथ काम करते हुए राजीव युवा विकासम स्कीम को आगे लेकर जाएं, रियासती सतह के नोडल ऑफिसर का तकर्रुर करें। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए अवामी हुकूमत तवज्जो मरकूज़ की हुई है। तेज़ी से तरक्की होने वाले तेलंगाना को पूरा मुल्क देख रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 12,600 करोड़ रुपए इंदिरा स्वरा विकासम स्कीम का आगाज़ किया है। समाजी जिम्मेदारी निभाने के लिए बैंकर्स आगे आ रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुलाजिमतों के मौके से महरूम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से 5 लाख अफराद को राजीव विकासम स्कीम के तहत मंजूरियाँ हवाले की जाएंगी। रियासत के यौम तासीस के मौके पर यह मंजूरियाँ हवाले करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसके लिए बैंकर्स ताउन करें। इस इजलास में 2025-26 सालाना खर्च के एक्शन प्लान को जारी किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि समाजी जिम्मेदारी के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबी हासिल होगी। इस इजलास में महकमा फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमीशन नोटिस के नाम निचली सियासत कर रही है। मीडिया से चिटचैट करते हुए उन्होंने कहा कि पालमूर रंगरडी प्रोजेक्ट पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था, इसका पर्दाफाश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम हक़ाइक़ आ गए हैं। कांग्रेस और BJP मिलकर कालेश्वरम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी जल्द मालूम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी कमीशन के जरिए हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान करके अब तक नोटिस देने का तमाशा कर रही है। KTR ने कहा कि कालेश्वरम के नोटिस अब तक नहीं मिले हैं, नोटिस मिलने के बाद क्या करना है इसका फैसला करेंगे। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी को मुख्तलिफ शख्सियात की नाकामी का मर्ज लाहक हो गया है, इसलिए हर दिन अलग अलग अंदाज में बात कर रहे हैं। KTR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कालेश्वरम को इंजीनियरिंग का कमाल करार दिया था, लेकिन उन्हें शुबा है कि कांग्रेस और BJP के चोरों ने मेडिगड्डा के पास बम लगाकर धमाका किया। KTR ने मिस वर्ल्ड मुकाबले को लेकर तेलंगाना हुकूमत को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में 500 किसान फौत हो चुके हैं।
وزیر اعلیٰ مس ورلڈ مقابلے میں مصروف ہیں۔ حکومت صرف کمیشن کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پاس کسانوں کے مسائل پر توجہ دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن مس ورلڈ مقابلے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مس ورلڈ مقابلے کے پوسٹر پر بھی بھٹے کمار کا، جے کرشنا راؤ اور ریونت ریڈی کی تصاویر کو بھی انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا۔ کے ٹی آر کا کہنا تھا کہ یہ تینوں مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ نے پالمور لفٹ اریگیشن پروجیکٹ پر عدالت کے فیصلے پر کے ٹی آر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ان کے حق میں دیا گیا ہے، تصور کر رہے ہیں۔ ناگم جنادھن ریڈی کانگریس میں تھے، اس وقت اس پروجیکٹ پر مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد میں ناگم جنادھن ریڈی کو بی آر ایس پارٹی میں شامل کر کے مقدمے کو کمزور کرنے کا کام کیا گیا۔ ناگم جنادھن ریڈی فی الحال بی آر ایس لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے صدر کے خلاف کس طرح مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ کے ٹی آر خود کو سچا اور بدعنوانیوں سے پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر ریونت ریڈی کو مکتوب لکھتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کریں۔ اگر ہمت ہے تو سی آئی ڈی یا پھر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کریں، تب معلوم ہوگا کہ بدعنوانی کس طرح ہوئی ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کے ٹی آر آگے آئیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ریلوے کے شعبے کو مزید سہولت بخش بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے اقدامات جاری ہیں۔ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کی تزئین کی گئی ہے اور اسٹیشن میں خواتین کا عملہ کام کرے گا۔ ملک بھر میں امرت اسٹیشن مہم کے تحت یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کی تزئینوں کا ورچوئل طریقے سے افتتاح انجام دیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں 14 قراردادیں اور 3 ٹیبل آئٹم کو منظوری دی گئی۔ میئر وجے لکشمی کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ جی ایچ ایم سی ملازمین کرکٹ ٹیم 2023-24 کے کرکٹ اسپورٹس سامان کے حصول کے لیے 6,38,500 روپے لیے گئے تھے۔ اس وقت کمشنر کی ہدایت پر کارروائی کرنے کے فیصلے کو منظوری دی گئی۔ جی ایچ ایم سی کے اہم دفتر میں میئر کے داخلے کے راستے پر موجود مجسمے کو موزوں مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر خوبصورت پانی کا فوارہ تعمیر کرنے کا بھی تجویز کو اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ سڑکوں کی توسیع، ماسٹر پلان کے تحت جائیدادوں کے حصول اور دیگر اہم قراردادوں کو بھی منظوری دی گئی۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان سی دیاکر نے پی سی گھوش کمیشن پر بی آر ایس قائدین کے بیانات کو نامناسب قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر جیسے شخص قانون دستور کی خلاف ورزی کریں گے تو عوام میں غلط پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہوتے ہوئے انجینئر کی طرح پیش آنے پر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ غلطی کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں تو یہ انتقامی کارروائی کس طرح ہوگی؟ بی آر ایس قائدین اس کا خلاصہ کریں۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاستی وزیر نارا لوکیش کے دوست کی کمپنی ارسا کو وشاکھاپٹنم میں صرف ₹1 میں 1 ایکڑ اراضی لیز پر دی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ 2,000 کروڑ روپے کی اراضی لولو مال کو بنا کسی ٹینڈر کے مفت میں دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے 8 لاکھ اسکوائر پر سیکریٹریٹ کی عظیم عمارت تعمیر کی اور اس پر 616 کروڑ روپے کے مصارف آئے۔ چندرا بابو نائیڈو 53 لاکھ اسکوائر فٹ پر سیکریٹریٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ صرف پیسے کی دھاندلی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں جاری مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسیناؤں نے پینٹنگ سیشن میں حصہ لیا۔ شلپارامم میں یہ ایونٹ منعقد ہوا تھا اور اس ایونٹ میں حسیناؤں نے مصوری کے فن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے بھی مقابلے کا ایک اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول شہر حیدرآباد میں گزشتہ رات شدید بارش ہوئی ہے۔ بالخصوص حیدرآباد میں مجموعی طور پر 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سنتوش نگر میں سب سے زیادہ 98.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سعید آباد میں 92، ملک پیٹ میں 91، سرو نگر میں 90، امبر پیٹ میں 99، موسرام باغ 88، ایل بی نگر 80، چمپا پیٹ 75، حمایت نگر 69، چار مینار 65، یاقوت پورہ 66، گچھی باولی 12، مولالی 42، سبشی گوڑا 54، سکندرآباد 47، خیرتآباد 42 اور اپل میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ 1 تا 1.5 گھنٹے ہوئی بارش کے دوران سڑکوں پر پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر برقی مزدودی کی بھی شکایت ملی ہے۔ چیتنیا پوری میں ایک آٹو کے بہہ جانے کی اطلاع ہے۔ صبح کو بھی بلدیہ کی ٹیموں کو پانی کی نکاسی میں مصروف دیکھا گیا۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन रहमतिया फंक्शन हॉल के रूबरू सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कम्युनिटी हॉल के नीचे सीवरेज लाइन और स्लेट चैम्बर का काम किया जाए। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में शामिल अहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ 25 मई को इंसानी जंजीर का एहतमाम किया जा रहा है। साबिक रुकन असम्बली और मुतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी की सदारत में बहादुरपुरा में इजलास मुनक्किद हुआ। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 25 मई को दोपहर 2-2:30 बजे तक इंसानी जंजीर का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से इस एहतजाजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। पर्सनल बोर्ड की जानिब से हिदायत दी गई कि 25 तारीख को इंसानी जंजीरों का एक मुजाहरा करे एहतजाजी तौर पर। चुनांचे नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने भी इस सिलसिले में तमाम सदूर मोतमदीन को कारकुनान मजालिस इब्तिदाई को हिदायत दी। मुख्तलिफ इलाक़ों में इसके लिए तहरीक चलाई जा रही है कि 25 तारीख को 2 बजे से 2:30 बजे तक हर आदमी अपने घर के सामने बाजू वाले से हाथ मिला के इंसानी जंजीर का एक बेहतरीन मुजाहरा करे और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ के जो कानून है, वक्फ का जो नया काला कानून लाया गया उसकी बर्खास्तगी के सिलसिले में ये एहतजाज की हिदायत दी गई है। चुनांचे तमाम अराकीन असम्बली सदूर मुतमदीन काउंसिल कॉरपोरेटर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चुनांचे किशन बाग से बहादुरपुरा चौरस्ते तक ये इंसानी जंजीरों का मुजाहरा किया जाएगा। हम इसको कामयाब बनाने की मुमकिन तौर पे कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के अवाम भी पुरजोश है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील को हम कामयाब करेंगे। इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, हुकूमत पे पड़ेगा और इसी तरीके के मज़ीद एहतजाजी प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद करके तरक्याती कामों के बशमूल दूसरे मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे बरक़ी मुशर्रफ फारूकी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के तरक्याती कामों के बारे में बात की। अलावा अज़ी उन्होंने रुकन बलदिया शालीबंडा डिवीज़न मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा GHMC जोनल कमिश्नर T वेंकन्ना, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल 9 वेंकटेश्वरलू और दूसरे अहदेदारों के साथ ज़ैर इल्तिवा कामों के बारे में एक जायज़ा इजलास लिया। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी सहूलतें, सड़कों के काम, साफ सफाई और अवामी सहूलियात के मौजू पर बात की और इसे मुकर्ररा वक्त पर पूरा करने की हिदायत दी। रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने भी मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की, जिस पर फौरी तवज्जो देने के लिए कहा, जिस पर मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में तेज़ी पैदा करके तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने डिप्टी कमिश्नर GHMC और GM वाटर वर्क्स के हमराह गंगानगर नाले के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि कामों की तकमील के लिए मजीद 20 ta 25 दिन लग सकते हैं। रुकन असम्बली ने नाले के कामों के पास मुक़ीम मकीनों को चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। रुकन असम्बली ने मकीनों को SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में 1 महीने के लिए क़याम की सहूलत की पेशकश की है। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के के अवाम की सहूलत के लिए मजलिस मुसलसल काम कर रही है। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आसिफ नगर से झिर्रा रोड तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को बलदिया की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया है कि फुटपाथ शेड्स बनाए जाने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। मुकामी अवाम की शिकायत पर बलदिया की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया था। बलदिया अहदेदारों ने बताया है कि मेहदीपट्टम से मल्लेपल्ली चौराहे तक भी गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया गया। अहदेदारों ने खबरदार किया कि गैर मजाज काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हाइड्रा की जानिब से पीरजादीगुड़ा में मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ताहम इस मौके पर मुतासरीन का इल्ज़ाम था कि उन्हें घर खाली करने के लिए 2 घंटे भी नहीं दिए गए। मुकामी मुतासरीन ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारी एक नहीं सुनी गई और हमारे मकानात को मुनहदम कर दिया गया। हाइड्रा के खिलाफ नाराज़गी का भी इज़हार किया गया। ख़वातीन जज्बाती और रोती हुई देखी गईं। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से चार मीनार के हुदूद में डेयरी फार्म की दीवार मुनहदिम हो गई। DRF और पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुँच गई। इस वाक़े में 2 भैंसें फौत हो गईं। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। बचाव और राहतकारी के सिलसिले में उन्होंने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। अतापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद किशनबाग 9 नंबर सेटविन के करीब एक ऑटो ड्राइवर 28 साला सुलेमान ने फांसी ले ली। पुलिस ने मुतवफ़ी शख्स की नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाख़ाने उस्मानिया मुंतकिल किया और ख़ुदकुशी का एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून पर हुक्म इल्तिवा से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला महफूज। वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा, आर्टिकल 25 और 26 के सुतूनों को हिलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर तीसरे दिन भी समाअत, मुस्लिम फरीकैन के वकला का रिजॉइंडर। राजीव युवा विकासम स्कीम को कामयाब बनाने में बैंकर्स ताउन करें। 2 जून को स्कीम की मंजूरियां हवाले करने हुकूमत का ऐलान। बैंकर्स इजलास से भट्टे विक्रमार्का का खिताब। पालमूर लिफ्ट इरिगेशन के मुकदमे में कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश। कालेश्वरम के खिलाफ भी झूठा प्रोपेगेंडा। रेवंत रेड्डी को नाकाम शख्सियात का मर्ज लाहक हो गया है।
KTR की चिट चैट। और शहर के नवाही इलाके पीरजादी गुड़ा में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई, मुकामी मकीनों का एतराज, मकानात खाली करने के लिए वक्त न देने का इल्जाम। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।